Hello children, today we are going to learn EVS 1, lesson number 1, the life cycle of animals. Now let's see what is there in this lesson. Now, see the first picture. Can you see mama dog is there and her puppies are there. They are playing with the ball. So can you tell me what are the similarities between the puppies and the mama dog? They both are having the same color. Okay, the puppies are small and the mama dog is big. Now see the second picture. Can you see? This is the adult butterfly. Adult means a complete matured, पूरी तरह से बड़ा हुआ butterfly. And see the small butterfly. It's a very early stage of butterfly. It's a caterpillar. We called it as a caterpillar. Now, so here in these two pictures, can you see a lot of differences there? Alright, here the young ones, they both are having same color. Only they are small and she is big. Correct? Only their weight and height is not same. But here in this butterfly and this caterpillar, they are absolutely different. They both are not same. Here the mama butterfly is quite big and here the baby is very different. They both are not having same color. So this is the difference between the two pictures. Now let's see the second picture of this hen. Can you see? The hen has given a birth to the young one. But how? First, the hen lay eggs. पहले hen अंडे देती है और फिर अंडों में से chicks बाहर आते हैं. Now see here, the cat and this is kitten. Now the cat, while giving the birth, जब वो अपने पेट में से जब वो बच्चा बाहर देती है तो डायरेक्टली किटन बाहर आता है. एक स्मॉल बेबी ऑफ किटन कम्स आउट. बल्कि हेन में ऐसे नहीं होता है. हेन में क्या होता है? पहले अंडा आता है और फिर उसमें से चीक्स बाहर आता है. सो ये है इन दो पिक्चर्स का डिफरेंस. दोनों में बच्चे बाहर आ रहे हैं, बट हेन का अंडे में से आता है और कैट का डायरेक्ट बाहर आता है, बेबी किटन. अंडरस्टूड? सो द किटन्स दे गिव डायरेक्टली बर्थ. The cat directly gives birth to the kitten. Now see here the growth of animals. A kid and a fluffy grown goat are not very different to look at. They both look same almost. There is not much difference between a kitten and an adult cat. These babies grow in their mother's tummy. Now this is a goat. अब ये goat के when the goat gives birth to the baby, she gives directly birth to the baby, just like a cat के जैसे. So they both look same. गोट कभी पहले अंडा नहीं देती है और फिर अंडे में से बच्चा बाहर नहीं आता है. गोट क्या करता है? हम ह्यूमन बींग्स की तरह, दूसरे एनिमल्स की तरह डायरेक्टली बेबी को बाहर निकालते हैं. अंडरस्टूड? नाउ दीज एनिमल्स डू नॉट ले एग्स, बट सम एनिमल्स लाइक crow, spiders, lizards, they lay eggs. कुछ एनिमल्स हैं जो पहले अंडे देते हैं और फिर अंडों में से बेबीज बाहर आते हैं. और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली बेबीज को बर्थ देते हैं. अंडरस्टूड? नाउ सी हियर. A chicken is born from an egg. Now, ants, butterflies, fish,
frogs, snakes are all animals that lay eggs. ये सारे जितने भी एनिमल्स हैं जैसे कि बटरफ्लाईज, चींटियां, मूंगी, फिश, फ्रॉग, सांप, स्नेक, ये सारे एनिमल्स पहले अंडे देते हैं और फिर अंडों में से बच्चे बाहर आते हैं. बट वी डू नॉट ऑफन सी देयर एग्स. लेकिन हम बहुत बार उनके एग्स कभी देख नहीं पाते हैं. द एग्स ऑफ सम वेरी स्मॉल एनिमल्स आर वेरी टाइनी. जब अगर एनिमल छोटा होगा तो उसके अंडे भी बहुत छोटे होते हैं जो हमारी आंखों से हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं. We would hardly notice them. So we do not come to know that these animals lay eggs. इसलिए हमें पता नहीं चलता है कि उनके अंडे होते हैं करके. But we know for sure that a hen lay eggs. But हम सभी को पता है, हम सभी ने देखा है कि hen अंडे देती है. Her eggs are big enough to be easily seen. बिकॉज hen के अंडे काफी बड़े होते हैं इसीलिए वो हम उन्हें देख पाते हैं. ऑलराइट, नाउ सी हैच. हैच का ये जो हैच शब्द है इसका मतलब क्या है? जब ये मुर्गी अंडों के ऊपर जब वो बैठती है अंडों को गर्म करने के लिए उस प्रोसेस को बोला जाता है हैचिंग. उस प्रोसेस को बोला जाता है हैचिंग. दैट hen इज हैचिंग हर एग्स. मतलब वो अपने अंडों को ऊब दे रही है, अंडों को गर्म कर रही है. उसको इंग्लिश में बोलते हैं हैचिंग. ओके, अ hen lays eggs. Warmth is necessary for the chicks to grow inside the eggs. अगर इन अंडों को गर्मी नहीं मिली तो इन अंडों के अंदर जो चीक्स होते हैं वो बड़े नहीं होंगे. ओके, तो वो बाहर नहीं आएंगे. इसके लिए इन अंडों को वार्म करना, गर्म करना बहुत जरूरी है. सो आफ्टर लेइंग देम द hen sits on the egg to keep them warm. The chicks inside slowly keep growing. और ये अंडों के अंदर जो चीक्स होते हैं उनका जो जान होती है वो धीरे धीरे वो बढ़ रहे होते हैं अंदर. जैसे जैसे उन्हें गर्मी मिलती है वैसे वैसे वो अंडे अंदर गर्म होते हैं. when its growth is complete. और जब इन अंडों को पूरी तरह से गर्मी मिल जाती है, जब वो पूरी तरह से ग्रो होते हैं तो the cheeks breaks. तब ये चीक्स क्रैक होके ब्रेक होते हैं और उनके अंदर से एग शेल में से बच्चे बाहर आते हैं. The hen looks after its cheeks till they grow a little bigger. hen जब तक ये बच्चे छोटे होते हैं तब तक इनका ध्यान रखती है. उसके बाद जब वो बड़े हो जाते हैं, अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं, तब ये hen इनका ध्यान नहीं रखती है. When a hen is hatching her eggs, she becomes aggressive for fear of their safety. जब ये मुर्गी, आपने बहुत बार देखा होगा, जब ये hen इन अंडों के ऊपर जब वो बैठती है गर्मी देने के लिए तब वो काफी एग्रेसिव होती है क्योंकि उसे डर लगा रहता है कि कोई उसके अंडों को फोड़ न डाले. इसलिए एग्रेसिव मतलब काफी गुस्सैली होना. ओके, सो शी अटैक्स एनीवन. और तब हम अगर कोई इंसान मुर्गी के आसपास जब जाता है तो वो तुरंत हमारे ऊपर अटैक करने आती है. Who tries to go near the eggs. Now, what are the similarities between the hen and her chick? अब ये क्या सिमिलैरिटीज है, दोनों में क्या समानता है, hen के अंदर और chicks के अंदर, और chicks में दोनों में क्या समानता होती है कि जब ये बच्चे, उन्हें भी 2 पैर होते हैं, उन्हें भी बीक होती है. स्लोली जब वो थोड़े बड़े होते हैं तो उन्हें भी hen के जैसे ही कलर आता है, उन्हें भी hen के जैसे ही पंख आना शुरू होते हैं. सो दीज आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन द चीक्स एंड द hen. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज, दैट इज metamorphosis. Now what is mean by metamorphosis? There are similarities between a goat and its kid.
and between a hen and her chick. However, a caterpillar and a butterfly are very different. Okay, so यहाँ पे उन्होंने कहा है गोट और गोट का बच्चा, जिसे हम किड कहते हैं इंग्लिश में, हैन और हैन के बच्चे चीक्स, जब वो बचपन छोटे होते हैं तो काफी सिमिलर होते हैं, सेम कलर, उन्हें भी हाथ पैर उतने ही होते हैं जितने उनके मम्मी को होते हैं. बट द कैटरपिलर एंड द बटरफ्लाई दे आर नॉट सेम. ये मम्मी जो बटरफ्लाई है और उसका बच्चा ये कैटरपिलर, दे आर नॉट सेम, दे आर वेरी डिफरेंट. उनका बचपन से ही उनका कलर, शेप, बॉडी काफी अलग होते हैं. Thus, in some animals, the young one grows into an adult animal that looks very different from the young one. This change of form is called metamorphosis. Means metamorphosis का मतलब होता है कि कुछ एनिमल्स के जो यंग वंस होते हैं वो बिल्कुल उनके डैडी मम्मी के जैसे, अडल्ट एनिमल्स के जैसे ही वो लोग दिखते हैं, और वेरी डिफरेंट फ्रॉम द यंग वंस. Sorry. Thus, in some animals, the young one grows into an adult animal that looks very different from the young one. Means कि जो बचपन में बिल्कुल ही सेम नहीं रहता है, डिफरेंट रहते हैं. दिस चेंज ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. मतलब उनका जो बचपन और जो अडल्ट है वो काफी अलग हो गए. Now we will see what is mean by metamorphosis. There are similarities between a goat and its kid. गोट और गोट के बच्चे में सिमिलैरिटीज हमने देखी हैं. बिटवीन अ hen and her chick में, hen और hen के बच्चों में भी सिमिलैरिटीज होती है. However, a caterpillar and a butterfly are very different. ये कैटरपिलर और बटरफ्लाई काफी अलग है इनका प्रोसेस. Thus, in some animals, the young one grows into an adult animal. इसीलिए ऐसे काफी एनिमल्स हैं जिनके बच्चों में और उनके अडल्ट में बिल्कुल समानता नहीं होती है. बट जब वो बचपन से जब वो बड़े होते हैं तब उन बच्चों में और अडल्ट्स में काफी समानता होती है. सिर्फ उनके बचपन में और वो बचपन से जब वो बड़े होने तक काफी उनमें डिफरेंस हम देख सकते हैं. उनमें काफी फर्क दिखाई देता है बचपन से लेके अडल्ट होने में. सो दिस चेंज ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. मतलब जो बचपन में काफी अलग होते हैं, लेकिन जब वो धीरे धीरे जब वो बढ़ने लगते हैं तब जाके वो सेम दिखते हैं. दिस चेंज ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. अब यही मेटामॉर्फोसिस हम बटरफ्लाई में देखेंगे कैसे होता है. बटरफ्लाईज ऑफ वेरियस शेप्स एंड ब्यूटीफुल कलर्स आर अ पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट. We all know that there are very different various colors of butterflies are there. They live their life among plants. वो अपनी सारी जिंदगी इन प्लांट्स, पौधों के बीच में बिताते हैं. As butterflies grow, they pass through 4 stages. जैसे जैसे बटरफ्लाई बड़ा होता है उन्हें 4 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है. So let's see उनके 4 स्टेजेस कौन से हैं. These are egg, larva, pupa and adult. ये है उनके 4 प्रोसेस. द अडल्ट स्टेज इज कॉल्ड बटरफ्लाई. जो सबसे लास्ट वाला जो स्टेज है, जब जहां पे बटरफ्लाई की पूरी ग्रोथ हो चुकी होती है, दैट स्टेज इज कॉल्ड एज अ बटरफ्लाई. द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई इज अ वेरी कॉमन. ये जो प्लेन टाइगर, ये जो कलर है बटरफ्लाई का, इट्स वेरी कॉमन बटरफ्लाई. लेट अस टेक इट्स एग्जाम्पल. हम उसी बटरफ्लाई का एग्जाम्पल लेते हैं टू सी हाउ द ग्रोथ ऑफ अ बटरफ्लाई टेक्स प्लेस. कि बटरफ्लाई कैसे बढ़ता है. सी नाउ दिस इज द रुई प्लांट. रुई का लीफ
और मिल्क वीड भी हम उसे बोलते हैं, या फिर रुई लीफ करके हम उसे बोलते हैं। तो बटरफ्लाई इसी लीफ पे आके अपने अंडे रख के जाता है। द अडल्ट बटरफ्लाई, जो फीमेल होती है बटरफ्लाई की, मम्मा बटरफ्लाई, वो प्लेन टाइगर बटरफ्लाई लेज एन एग, वो अपने अंडे इन ऐसे पत्तों पे रख के जाती है, मिल्क वीड रुई के लीफ में। इन 6 to 8 days में द लार्वा इमर्जेस फ्रॉम द एग, उस अंडों में से ऐसा लार्वा बाहर आता है। द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड अ कैटरपिलर, इसे लार्वा भी कहते हैं और इसे कैटरपिलर भी कहते हैं। तो अंडे, एग इज अवर पहला स्टेज, सेकेंड लार्वा जो कैटरपिलर बनता है। Now, when the caterpillar comes out of the egg, it is very hungry. जब ये कैटरपिलर अंडों में से जब ये बाहर आता है, that times this caterpillar is very hungry. He start eating the whole leaf. It begins to nibble and eat the very leaf on which it emerges from the egg. जिस अंडे से वो लीफ पे आया हुआ होता है, वही लीफ वो फटाफट खाना शुरू कर देता है। एंड ही ईट्स कंप्लीटली, इट ईट्स वेरी फास्ट, सो इट्स ग्रोथ इज वेरी रैपिड। वो जल्दी जल्दी खाने के वजह से उसकी ग्रोथ भी काफी रैपिड होती है, फास्ट होती है। Now see this, here a new word is there, molt. Now what is mean by molt? To shed old skin to make way for new growth. मतलब पुरानी चमड़ी को निकाल देना, जिससे उन्हें निकालने के बाद ही उन्हें नई चमड़ी उन्हें मिलती है, उनकी ग्रोथ में हेल्प होती है। The caterpillar of the plain tiger butterfly grows so rapidly in the first 2 or 3 days. वो पहले 2 या 3 दिन काफी जल्दी जल्दी खाना खा के काफी जल्दी बड़ा होता है। That it does not fit in its skin anymore, कि वो खुद की पहली स्किन में वो फिट नहीं होता है। But under the old skin, उसके अंदर के स्किन के पुरानी चमड़ी के अंदर उसे नई चमड़ी बाहर आना शुरू होती है। A new loose skin is formed on the growing caterpillar. Then the caterpillar shed the old skin. जब कैटरपिलर को ये पता चलता है कि उसके अंदर नई चमड़ी की ग्रोथ हो गई है, तब वो पुरानी वाली चमड़ी को बाहर निकालना शुरू करता है। Old skin, that is, it's called as a molds. Understood? Now, let's see the next page. Now, again it begins to globule up. फिर से वो चमड़ी निकाल के फिर से वो खाना शुरू करता है। The leaf and continues to grow rapidly. In 2 day or 3 days, वो 2 या 3 दिन में it molds a second time. दूसरी बार भी वो second time वो चमड़ी निकालना शुरू करता है। In this way, it molds 4 times. इस तरह से वो 4 बार अपनी स्किन को निकालता है। It remains in the caterpillar stage for 10 to 12 days. 10 से 12 दिन तक वो एक कैटरपिलर के स्टेज में ही रहता है। Just before the last molt, वो जो लास्ट 4th टाइम जब वो स्किन निकालता है, तब वो क्या करता है? The caterpillar waves a button of a silken thread on a stalk or a leaf and hangs itself from it. देखो, जब वो लास्ट टाइम अपनी जब स्किन वो निकालता है, तब वो क्या करता है? अपना एक थ्रेड वो बना लेता है, जिससे वो पूरे अपने बॉडी को कवर करके वो जिस लीफ पे या वो जिस टहनी पे वो रहता है, उसे पकड़ के वो हैंग करता है। सी लाइक दिस। इस स्टेज को कहा जाता है प्यूपा, मीन्स अ क्राइसिल्स। अंडरस्टूड? इसे प्यूपा भी कहते हैं। इट्स अ क्राइसिल्स। When it molds, this time it forms a pupa, which is the next stage of its growth. ये है उसकी 3rd stage. Pupa is the 3rd stage.
द प्यूपा ऑफ अ बटरफ्लाई इज ऑल्सो कॉल्ड अ क्राइसिल्स. इसे क्राइसिल्स भी कहते हैं, प्यूपा भी कहते हैं. इट रिमेन्स इनसाइड द क्राइसिल्स फॉर द नेक्स्ट 11 और 12 days. वो इस क्राइसिल्स के अंदर 10 से 12 दिन तक, 11 से 12 दिन तक वो बिना खाए पिए इसके अंदर वो रहता है. It does not eat anything during this stage. However, inside the chrysalis, important changes take place in its body. उसके अंदर जब वो प्यूपा के स्टेज में होता है तब उसके अंदर काफी इम्पोर्टेंट बॉडी के अंदर चेंजेस होते रहते हैं. द ग्रोथ ऑफ द प्लेन टाइगर गेट्स कंप्लीटेड इनसाइड द क्राइसिल्स. और जब 12 दिन होने के बाद उसके बॉडी के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट चेंजेस होने बाकी होते हैं वो पूरे कंप्लीट हो जाते हैं. एंड आफ्टर 12 days इट स्टार्ट कमिंग आउट लाइक दिस. इस तरह से वो बाहर आना चालू करता है. The growth of the plain tiger gets completed inside the chrysalis. Then the adult butterfly emerges from the chrysalis. It now has 4 attractive wings and 6 long legs. Butterfly को 4 बड़े wings होते हैं और 6 long legs होते हैं, 6 पैर होते हैं. All butterflies go through these stages of growth. तो सारे बटरफ्लाई ये 4 स्टेजेस में से गुजर कर ही वो बड़े बनते हैं. सो आप सभी बच्चों को अब ये समझ में आया कि बटरफ्लाई का जन्म कैसे होता है, बटरफ्लाई को कौन से 4 स्टेजेस में से गुजरना पड़ता है. द फर्स्ट इज एग. एग के बाद वो बनते हैं कैटरपिलर मीन्स लार्वा. और लार्वा के बाद वो बनते हैं लाइक दिस प्यूपा मीन्स क्राइसिल्स. और क्राइसिल्स के बाद उनका पूरा बॉडी ग्रोथ होने के बाद वो बनते हैं बटरफ्लाई लाइक दिस. हैव यू ऑल अंडरस्टूड? Okay, so like this here we have completed our first lesson, the life cycle of animals. Thank you.